Hello students, a very warm welcome to you all to this session. Welcome to Edufly JEE NEET Pragyan batch. I hope every one of you are fine and how your preparations are going on. Please just comment me in the comment box, okay? कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ओके? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेट्स, ठीक है? तो फाइलम नॉन कॉर्डेट्स पार्ट इज डन टिल इकानोडर्माटा, ओके? तो first we'll study about the basics of chordates and in the subsequent classes we'll complete this part, okay? तो आज हम पढ़ेंगे chordates, एनिमल किंगडम, फाइलम, chordates, ठीक है ना? Today we'll discuss about the chordates part. So this is nothing but the flow chart that will help you to understand about the chordates, okay? So first the chordates is divided into two parts. One is acrania and the other is craniata. Acrania means without brain, okay? Those organisms which do not have brain, they are known as acrania, and it is also known as protochordata. That means in case of acrania, those organisms which doesn't has brain, it is divided into two parts, that is यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा. क्लियर है? तो एक क्रैनिया में क्या होता है, यूरो एंड सेफलो, ठीक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं. और क्रेनियाटा में, क्रेनियाटा मतलब क्या होगा, विद ब्रेन, ओके? मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में ब्रेन होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रेनियाटा कहते हैं. और क्रेनियाटा टू पार्ट्स होते हैं, वन इज अग्नाथा एंड द अदर इज gnathostomaटा, okay? Gnathostomata pronunciation, ठीक है? And this diagram that is taken from NCERT book. So अग्नाथा एंड gnathostomaटा, जैसे कि प्रीवियस चार्ट में आपने देखा, चार्ट आप अगर देख लेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर यू ऑल, ओके? तो अग्नाथा मीन्स दे लैक जॉ, दैट मीन्स उनका जॉ बोन एब्सेंट होता है. तो ये अग्नाथा में कौन आते हैं, साइक्लोस्टोमाटा आते हैं, ठीक है? क्लास साइक्लोस्टोमाटा. और ग्नाथोस्टोमाटा मीन्स दे विल हैव जॉ बोन्स होते हैं उनमें. तो उनमें सुपर क्लासेस होते हैं, टू सुपर क्लासेस, दैट इज वन इज पिसिस एंड द अदर इज टेट्रापोड. पिसिस मतलब पिसिस वही आएंगे जो फिश होते हैं. फिश में क्या होता है, फिन्स होता है, फिन्स होता है ना, फिशेस में फिन्स होता है. तो पिसिस में क्या होता है, chondric thighs and ostrich thighs. These two are the important classes of fishes, okay? And next we'll move on to tetrapoda. Tetrapoda क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें limbs होते हैं, they have lower limbs and that's why they are known as tetrapoda, ठीक है? जैसे कि जो classes हैं, amphibians, you know frog have limbs, okay? Then reptilia, then aves, then mammals जैसे हम बिलोंग करते हैं mammals में. तो ये सारे जो हम एक एक करके क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है? तो टुडे विल डील विद साइक्लोस्टोमाटा एंड अबाउट द टुडे यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा. दैट मीन्स acrania पार्ट विल कंप्लीट एंड फ्रॉम द craniata पार्ट विल डिस्कस अबाउट द अग्नाथा पार्ट. gnathostomaटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आज हम सिर्फ क्लास साइक्लोटोमाटा तक कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्लास हम पेसिस, एम्फीबिया, ये सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे, ओके? चलो, तो सबसे पहली बात, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chordates. फॉर एनी ऑर्गेनिजम्स टू बी आइडेंटिफाइड एज chordates, these are the important characteristics of chordates that you all have to know, okay? See, first will be presence of notochord. Notochord, you know, notochord, it is replaced by vertebral column in case of adults, okay? जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, द बैकबोन, द स्पाइन that helps in sitting straight position, okay? It is replaced by vertebral column. किस में होता है, एडल्ट में, ठीक है? लेकिन जो
जो एडल्ट नहीं होते, जो बेबी फॉर्म में होते, जो एनिमल्स बेबी फॉर्म में है, उनमें नोटोकॉर्ड एग्जिस्ट होते हैं। जैसे वो एडल्ट फॉर्म में पहुंच जाते हैं, उनमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? Presence of notochord, this is a very important characteristics of chordates. If anyone asks you, you can close your eyes and say, because this is the very important characteristics of chordates, that is presence of notochord. Clear है? Dorsal hollow nerve cord. Okay, dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits, post anal tail if present. टेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मंकी में होते हैं, है ना, और बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं टेल, बट वी ह्यूमंस डजंट हैव टेल्स। और हम कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उन जानवर को भी नहीं भूल सकते जिनका टेल है, या फिर जो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, their gills helps in the respiration, like we have lungs for the respiration. Some animals, those who stay in the marine water, in aquatic, they have gills for their respiration, right? So these are the important characteristics of chordates. Next we'll talk about, that is the acraniata part का, acrania part का we'll discuss first protochordata. First we'll discuss about the protochordata, और protochordata में ही यूरो एंड सेफ्लो आते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको, यूरोकॉर्डेटा और इट्स नॉन एज ट्यूनिकाटा, ओके, और इट्स नॉन ट्यूनिकाटा, और इट्स नोन एज एससीडिया, ASCIDEA, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा क्या है? दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स. That means these animals always stays in the water. They don't have any connection with the land. सिर्फ पानी में रहते हैं. क्लियर है? These are mostly sessile, filter feeding animals. Okay? Sessile means they stay alone, and filter feeding, that means इस animals के थ्रू फिल्टर किया जा सकता है. पानी फिल्टर करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म से अपनी बॉडी से फिल्टर कर सकते हैं. जैसे कि अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट उनकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट हमें रिमूव करना है, तो वो खुद अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, इसलिए इनको फिल्टर फीडिंग एनिमल्स कहते हैं. ठीक है. बॉडी इज जनरली अनक्लोज्ड एंड लेदरी टेस्ट ट्यूनिक composed largely of tunicin, also called animal cellulose, and this part is important for your neat point of view. ठीक है. बॉडी जो है, उनका जो बॉडी है वो लेदर, मतलब जैसे लेदर आप सभी लोग पहनते हैं, तो एक लेदरी लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? इट्स नॉन एज ट्यूनिसिन, एंड दिस ट्यूनिसिन इज ऑल्सो नॉन एज एनिमल सेलुलोज. तो बॉडी किस में एनक्लोज होता है? लेदरी टेस्ट. और उस लेदर को किस चीज से कंपोस्ट किया जाता है? दैट इज ट्यूनिसिन. ओके. नोटोकॉर्ड occurs only in the tail of the larva and disappears in the adult. नोटोकॉर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि वो बेबी फॉर्म पे रहते हैं और एडल्ट फॉर्म में बहुत सारे एनिमल्स में डिसअपियर हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे एनिमल्स पे वर्टिकल कॉलम से रिप्लेस हो जाते हैं. ठीक है. तो नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ टेल, लार्वा के टेल में रहेगा, और जैसे ही वो लार्वा एडल्ट फॉर्म हो जाएगा तो वो डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट we'll talk about Urochordata. Proto is done. Urochordata. Nerve cord is present in the larva but is replaced by a single dorsal ganglion in the adult. जो nerve cord है, जैसे कि difference, a very common difference between the Cephalochordata and Urochordata. Sorry. It's my mistake. Actually, Urochordata is going on. Cephalo is yet to be discussed. Nerve cord is present in the larva. ठीक है. जैसे मैंने कहा, nerve cord जो है लार्वा में प्रेजेंट होगा, लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म, जब वो बड़े हो जाएंगे, तो सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन से रिप्लेस हो जाएगा. Pharyngeal slits are numerous, that is persist in the adult and open into an ectoderm lined cavity, the atrium. जो pharyngeal slits है वो बहुत सारे होते हैं इनमें, है ना, क्योंकि ये सारे एनिमल्स मैराइन है, पानी में रहते हैं, इनमें गिल्स नहीं होता, तो ये कैसे रेस्पायर करते हैं? देयर आर नो गिल्स प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. लार्वा, यूरोकॉर्डेटा ही चल रहा है. लार्वा इज कॉल्ड
larva is called as tadpole. Larva is called as tadpole and it changes into degenerate adult. That means जैसे कि मैंने अभी कहा कि लार्वल स्टेजेस इसमें होते हैं, तो लार्वा ही एडल्ट फॉर्म होगा, लार्वा से एडल्ट फॉर्म होगा, तो उस लार्वा का नाम क्या है? दैट इज नॉन एज टैडपोल. ओके, दैट लार्वा इज नॉन एज टैडपोल एंड दैट लार्वा टैडपोल जब वो एडल्ट फॉर्म होगा तो ये लार्वा खत्म हो जाएगा, एडल्ट हो जाता है ना लार्वल स्टेजेस से. एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. तो जब भी ये टर्मिनोलॉजी मेटामॉर्फोसिस आया आपके पास, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोस्ड करना. ठीक है, चलो. तो ये है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वीरोकॉर्डेटा दैट यू हैव टू रिमेंबर. हर्डमनिया वो क्या कहते हैं? सी स्कॉट कहते हैं. डोलियोलम सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं. फ्री स्विमिंग वो आराम से स्विम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पायरोसोमा कॉलोनियल फॉस्फोरेसेंट फॉर्म. दिस टू इम्पॉर्टेंट. ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पहले के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज ओइकोप्ल्यूरा टेल्ड फॉर्म लिविंग इन अ सल्फ secreted house Salpa acidia. So these are the common examples of Urochordata. ठीक है. Next let's move on to Cephalochordata, and this Cephalochordata is known as blueprint of chordata. So this you have to remember. इनको क्या कहते हैं? Cephalochordata को blueprint of chordata कहते हैं. ठीक है. They are exclusively marine फिल्टर फीडिंग एनिमल्स, सेम लाइक वीरोकॉर्डेटा, पानी में रहते हैं और फिल्टर फीडिंग है. नर्व कोड, जैसे कि वहाँ पे नर्व कोड सिर्फ लार्वल स्टेजेस में रहता था, उसके बाद सिंगल गैंग्लियन से रिप्लेस हो जाता था. लेकिन सिफ्लोकॉर्डेटा में क्या होता है? नर्व कोड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे एंटायर लाइफ में नर्व कोड रहता है उनमें. नोटोकॉर्डा एक्सटेंड्स टू द टिप ऑफ द स्नाउट. Pharyngeal slits are numerous and persist in adult. Pharyngeal gill slits जो है बहुत सारे और adult में भी persist करते हैं. Example is Branchiostoma, the Amphioxus and land slit. That means this is the very common example of Cephalochordata. That is Branchiostoma. It is also known as Amphiox and land slit. Okay. Next is Cyclostomata. Cyclostomata किसका था? हम Agnatha part complete कर रहे हैं. ठीक है. आज हम Agnatha कंप्लीट करेंगे. द नेक्स्ट क्लास विल मूव ऑन टू Gnathostomata. Then Cyclostomata is why its name refers to a cyclo means circular, stomata mouth. तो इस ऑर्गेनिजम्स को हम सर्कुलर माउथ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. द क्लास Cyclostomata includes lampreys and hagfish. ओके, तो includes lampreys, LAMPREYS. तो साइक्लोस्टोमाटा के वेरी कॉमन एग्जांपल्स क्या है? लैम्प्रेज है एंड हैगफिशेस. एंड हैगफिशेस इज आल्सो नोन एज मैगजीन. ओके, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, मतलब बहुत एंशियंट टाइम से ये ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते आए हैं. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू हैबिट एंड हैबिटेट. लैम्प्रे जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, लैम्प्रे लिव्स इन सी बट असेंड्स टू रिवर्स फॉर स्पॉनिंग. बेसिकली जो लैम्प्रे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सी में रहते हैं, बट वो रिवर कैनाल रिवर्स में आते हैं किस लिए? अपनी गैमेट को रिलीज करने के लिए. एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज स्पॉनिंग. ठीक है. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इस टर्मिनोलॉजी को भी याद रखना है आपको कि if someone says you what is spawning and you won't be able to speak up. spawning means गैमेट को रिलीज करना, उसी को spawning प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. फॉर फीडिंग लैम्प्रे अटैचेस टू अ लार्जर फिश बाय सक्टोरियल माउथ. अगर लैम्प्रे को फीड करना है, अगर खाना खाना है, तो वो क्या करता है? लार्जर फिश, सबसे बड़ा जो फिश होता है, तो लैम्प्रे छोटे छोटे फिश होते हैं, वो बड़े फिश को अटैच कर लेते हैं, बॉडी पे सट जाते हैं और वो सक करते हैं. उनके माउथ में सकर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू वो सक करते हैं खाना. ठीक है ना. दोज
make punches in the body of host with teeth and suck blood in pieces of flesh. छोटे छोटे फिश होते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़े फिश के बॉडी पे से चिपक जाते हैं, फिर उनके जो मुंह पे शक्कर लगा हुआ होता है वो उसे छेद करते हैं, अपने दांतों से छेद करके और ब्लड को सक करते हैं और उनके जो फ्लैशेस है, जो मस है, फ्लैश को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो अपना खाना और भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी फॉर्म। बॉडी कैसा है, लॉन्ग ईल लाइक, ईल फिश, ईल मछली आप सभी लोग जानते हैं और बहुत लोग खाते भी हैं, ऐसे पतली करके होती है, ऐसे थिन वन, मतलब बहुत पतला, इतना मोटा भी नहीं होती है, पतली होती है, बहुत लोग उसे बहुत पसंद से खाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं साइक्लोस्टोमाटा के लैम्प्रे, बेसिकली वो कैसा होता है, ईल जैसा शेप में होता है। ठीक है, अपेंडेजेस, देयर आर नो पेयर्ड फिन्स, जैसे कि फिन्स प्रेजेंट होते हैं फिश में, है ना, फिन्स, तो उनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, मीडियन फिन्स सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फिन रेस आर प्रेजेंट। एक फिन होगा, पेयर्ड तो होगा नहीं, एक होगा, और दूसरा जो फिन होगा वो कार्टिलेजिनस फिन रेस से सपोर्ट होगा। ठीक है, स्किन कैसा होगा, स्किन इज सॉफ्ट, स्मूथ, स्लाइमी एंड स्केललेस, इट इज यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड। स्किन बहुत सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, एकदम स्लाइमी लेयर होगा और स्केल नहीं होगा उनमें, जैसे बहुत सारी मछलियों में स्केल्स होते हैं, कांटा, इनमें स्केल्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ कैसा होता है, इट्स जॉलेस, सर्कुलर एंड सेक्टोरियल। जॉ, जैसे कि अभी मैंने कहा, जॉ लेस का मतलब अग्नाथा, जो ऑर्गेनिजम्स को जॉ बोन्स नहीं है उन्हें अग्नाथा कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स में जॉ नहीं प्रेजेंट होते, जॉ बोन्स आर एब्सेंट। माउथ सर्कुलर है, सेक्टोरियल है, दैट मीन्स वो ब्लड सक कर सकते दूसरे ऑर्गेनिज्म से। और जो टंग है दैट बियर्स हॉर्नी टीथ, हॉर्नी मतलब बहुत बहुत नुकीले दांत होते हैं उनके। ठीक है, द इंटेस्टाइन हैज अ फोल्ड, द टिफ्लोसोल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। जो इनका इंटेस्टाइन है उसमें एक फोल्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, टिफ्लोसोल। गैस एक्सचेंज कैसा होता है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स प्लेस्ड इन सैक लाइक पाउचेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, गिल्स होता है, पानी में रहते हैं तो गिल्स के थ्रू वो रिस्पायर करेंगे। 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स, सैक लाइक, ऐसे सैक लाइक से पाउचेस में ऐसे गैदर करके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट कैसा है उनका, 2 चैम्बर्ड हैविंग 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट बट देयर इज नो कॉनस आर्टरीज। these are the part of circulatory system कि साइनस वेनोसस होता है, कॉनस आर्टरीज एब्सेंट होता है। RBCs are circular, irregular and nucleated. शेप ऑफ RBCs कैसा होगा, सर्कुलर होगा, इरेगुलर होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इन ऑर्गेनिजम्स के RBCs में। नेक्स्ट एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन कैसे होगा, बाय किडनीज, किडनीज के थ्रू वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव करेंगे। क्लियर, नर्वस सिस्टम, देयर आर 8 or 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves. Cranial nerves will get to study in nervous system. Very details about the cranial nerves, nervous system में। ठीक है, sense organs, the olfactory sac is single and median. olfactory जो मतलब जिसे वो स्मेल करते हैं, that is known as olfactory, वो सिंगल एंड मीडियन है। ईयर कंसिस्ट ओनली ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, दैट इज द इनर ईयर रहता है उनमें। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट टू नोट वेव्स एंड करंट्स इन वाटर। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है, साइक्लोस्टोमाटा लैम्प्रे हो गए, हैगफिशेस हो गए, इनमें क्या होता है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स हो जाए, जिससे अगर समुद्र में लहरें ज़्यादा हैं या वाटर करंट बहुत स्ट्रांग है तो इस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू साइंटिस्ट पता कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं कि क्या हम बेकार का पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू हम बहुत सारी लाइफ को सेव कर सकते हैं कि वाटर करंट ज़्यादा है या फिर समुद्र के किनारे बहुत लोग बसे हुए और वेव है, वाटर वेव ज़्यादा है, जिसके थ्रू मे बी देयर मे बी ए चांसेस ऑफ सुनामी एंड एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। सो दिस ऑर्गेनिज्म से हम वाटर करंट पता कर सकते हैं। अगर वाटर करंट ज़्यादा है दैट मीन्स we are not supposed to go there. Okay,
Next, we'll talk about the reproductive system. Gonad is single and without a gonaduct. गोनाड सिंगल है, दैट इज एक ही में मेल फीमेल दोनों ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, और गोनोडक्ट एब्सेंट होते हैं. गैमेट्स शेड इनटू द सीलम व्हेंस दे एस्केप थ्रू द यूरिनोजेनिटल अपर्चर. जो गैमेट्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के, वो कहाँ शेड होते हैं? सीलम में वो शेड हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद एस्केप होके वो यूरिनोजेनिटल अपर्चर में पहुंच जाते हैं. ओके. Next, we'll talk about the fertilization. Fertilization is external. Life history may include a filter-feeding larva called amocyte. Amocyte. तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में लार्वल स्टेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके बाद लार्वल स्टेजेस से वो एडल्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है. लार्वल स्टेजेस का नाम क्या है? एनमोसिट. It greatly resembles the lancelet in structures and mode of life. ये lancelet एक organisms है जिससे ये organisms हम compare कर सकते हैं lancelet के through based on the structure and their mode of life. Example क्या है? Petromyzin, there is lamprey, and myxin, hagfish. तो example is very important. Okay. So with this I've completed this chapter. Okay. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली आपको, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. एंड कीप योर प्रिपरेशंस वेल. ओके. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्लास और एनी प्रीवियस क्लासेस, you can WhatsApp me or comment me in the comment section. So with this I'll conclude my class today. Thank you so much. Take care.